मॅडम वो एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल 7th एडिशन जावन आनी तुमचे स्टॉल हांगासर तर तुमकां कितें सांगता दिसता वॉट यू लायक टू से हांगा एडवर्टिजमेंट करपाक मेळटा आमची शॉप एक मेन रिजन हांगा घालपा खातीर एडवर्टिजमेंट जाता न्ही आनी सेलूय जाता हो तुमचो फर्स्ट टायम हांगासर हय फर्स्ट टायम इंडिविज्युअली पयलीं हांव आसलें हांगा पण कोणाच्या अंडर काम करतालें आतां म्हाजें इंडिविज्युअल तर तुवें स्वताचें ओन स्टॉल हे केला सेटअप केला सो तुमचे कडेन कितें कितें हांगासर सेल करपाक फिशीज आहा ऑल टायप्स एमेझॉन फिशीज आहा थोडी हे सगळे सॉल्ट वॉटर ना स्वीट वॉटरूच आसा सगळी ओके आनी बेटा फिशीज आहा देन एसेसरीज आसा आनी ते फिशरीजांक जे खावपाचे प्रॉडक्ट आसा तेय तुमी दवरला हय तेय आसा आनी सम मेडिसिन्सूय आसा थोडी जेन्ना स्टार्टींग कोण फीश पोंड बीन धरून नुस्तें पोसपाक ट्राय करता तांकां तुमचो एडवायस कितें आसतलो पोंड करता जाल्यार कोय फीश घालपाक मेळटा कोय आनी शार्क आतां तुमकां हितून आनी टँक्स आसा जाल्यार टँक्सान घालपा खातीर गोल्ड फीश आनी फायटर आतां तुमकां कितली वर्सां जालीं तुमी ह्या फीश हितून काम करता हितून हांव आतां काम करता म्हाका 6 वर्सां जालीं आनी तुमचें क्वॉलिफिकेशन कितें आहा मॅडम 12th ओके थँक्यू
7th एडिशन जावन एक्वा मेगा गोवा. This is the 7th edition of Aqua Goa Mega Fish Festival. Your stall is here. So what do you like to say? So this is, we are from CSIR NIO and this is for education purpose only. Right now we are working on seaweed cultivation. So these are the few species we are cultivating in our lab, and currently we are focusing on this one and we are trying to cultivate it on a larger scale. So we are trying to identify potential locations in the coast of India so that we can cultivate seaweeds. Ma'am, your name? Gitanjali Sahu. Okay, thank you. So this is the 7th edition of Aqua Goa Mega Fish Festival. Your stall is here. So what like you to say? Sorry? About your stall, what do you like to say? Basically, we are into the cage culture fish farming, and we used to install cages for the fish farming to the real reservoir, dams, and even in the seas also. The circular cages, we have circular cages for the sea, and this rectangular cages for the reservoir and dams. And we are the manufacturer of pontoons. This is the floating pontoons and the STP pipes. So is it your first? We are basically from Rajpur, Chhattisgarh, and we are working all over pan-India. We have a project in Maharashtra, Odisha, and Goa. We have a project which should be started by this February. By 8 we have a meeting, maybe the next time we will start. So in upcoming day, it will be getting started in Goa Started also. in Goa also. So is it your first time here in the? Yeah, this is our first time in Goa. So how's the response? Response was pretty good. The people here, actually there is no dam and rivers. That's why the things are little different. But we have approached, we have few people who have we are willing to show us our sites, their sites. Once we find their site, we will decide what kind of cages we can Sir, as you are spread pan India, so what are your future plans? My future plans, we have a plan for working all over India, because we have done so much in aquaculture. Now we wanted to do the work on mariculture also, in the sea cages also. So what would be your message for the who students are willing to study the marine higher studies? There are many people in, like Goa is a fishing industry. There are also not many farmers are here. That's why we are focused to Goa, because this is bounded by the sea all Coastal there, line. and the community understand the fishing. So that's why we have chosen Goa to start a mariculture here. Thank you so much, sir. Thank you very much.
20 series 10 का 1500 रुपये लास्ट एक्वा मेगा गोवा फिश फेस्टिवल 7th एडिशन जावन आनी तुमचे स्टॉला हांगा तर तुमकां कितें सांगता दिसता? आमी लास्ट इयर बी स्टॉल घातलेले आमकां खूब प्रॉफीट जाला आनी हेय फावट आमकां खूब प्रॉफीट जाला लायक आमकां नाबार्डान खूब हेल्प केला हितून वी वॉन्ट टू थँक यू नाबार्ड फॉर एक्वा गोवा सपोर्टिंग फॉर अस and this time I am doing in Diwar my project is there ornamental fishes and I have goldfishes, guppies, then angels, whiskers, certain type of fishes are molly also, koi also we have and I sell in my market but we not getting response that much, only visitor coming to visit but Aqua will help, Aqua Goa help for us to for marketing. We want next time also to do like this. Ma'am, how you got into this fishing culture? Because we take training in ICAR, ICR and we are Sai Darshan group, SAG, Mahila Mandal for empowerment of the woman and then they make us a group and then we take the training and then afterwards we want to buy the fishing project and we settle in the Diwar, the project. So right now at your store what is there? Sorry? Right now at your store what is there to sell? I want to tell. What are you selling right now? Now I sell guppies, angels, because of breeding purpose of children to learn about the project. This male and female we put in this and how the breeding we teaching for the children when they go taking at home and they can learn in this bowl and especially for children we kept for this. Most of the time when people first time purchase no fishes in the pond, the fishes get died. So what would you like to say on that? When fishes die, because when the fishes die, the bulk of the fishes, certain food they need, pellets and all. When we put that, we have to put a little. Sometimes the virus coming, it doesn't make out it. Virus in all the over the world it is. And then it's hurt the fishes. Madam, your name? My name is Reena D'Souza. I am from the Diwar, Mahila Mandal, SAG group, Sai Darshan group. Thank you. Okay. Live. Go on, reporter. गोवा में एक्वा मेगा फिश फेस्टिवल 7th एडिशन चल रहा है और आपका यहाँ पे स्टॉल है, आप क्या कहना चाहोगे? ये एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल है ना, ये हर साल चल रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशेज़ का ये बड़ा मेगा इवेंट है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक्वा वर्ड है ना बहुत डाइवर्स वर्ड है। या तो हम बोले तो समंदर में ही
हम 1250 प्लस ये फिन वाला मछली है। बाद में ये मसल्स हो जाता है, क्रैब्स क्रस्टेशियंस हो जाता है और मोलस्कन्स हो जाता है। ऐसे बहुत सारे खूब मछली के संपत्तियाँ हैं। तो इन सबको जो हम है ना जो ह्यूमन को वो परिचय करना है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का आधुनिक युग में तो हम सिर्फ कंप्यूटर और अदर रिलेटेड एजुकेशन में बहुत बिजी है। हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे जीवियाँ हैं, हमें बहुत को विस्मय करने वाला है। तो हमारा उसी तरफ से रिसर्च करने वाला हमारा सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हम मेनली ऐसे समुद्र में ऐसे जितना विविध जाति मछलियाँ हैं और क्रैब है और क्रस्टेशियंस या मोलस्कन्स ऐसे बहुत सारे मछलियाँ हो जाते हैं ना, उनके बारे में स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ ही अभी समुद्र में बहुत सारे फिशिंग होने के कारण तो मछली का संपत्ति भी कम हो रहा है, और जो मछलियाँ हैं वो बहुत दूर जाके उनको पकड़ना होता है। तो उसके लिए हमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी चाहिए, फ्यूल चाहिए और बड़ा बोट भी चाहिए, उसके साथ वो ह्यूमन पावर भी चाहिए। इन सबको कम करने के लिए हम कुछ ऐसे इकोनॉमिकली इंटरेस्ट वाला जो मछलियाँ हैं उनको ज़िंदा पकड़ के उनको ब्रीडिंग करके तो ऐसे समुद्र में पंजर में पालन करने का भी हम ट्रायल कर रहे हैं। अभी हमारे रिसर्च स्टेशन से वो सिग्यानस ऑर्मैकुलेटस और अकेंथोपैगस बर्डा, ये दोनों मछलियों को हम स्टैंडर्डाइज करके हम ही हैचरी में अभी ब्रीडिंग करके पाल रहा है, और जो इंटरेस्टेड फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी करके और अभी उनको मछली पालन करने के लिए भी दे रहा है। सर आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है और बहुत से जो फिशीज है ना एंडेंजर्ड लाइफ पे है, एंडेंजर्ड स्पेस पे एंडेंजर्ड। हाँ, तो उसके लिए आपने कोई स्टेप्स लिया है उसके ऊपर? हाँ, तो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उसके लिए हम बहुत सारे प्रोग्राम जब भी हमें मौका मिलता है हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सोचते हैं। तो हम हमारे इसमें जो एंडेंजर्ड मछलियाँ जैसे वेल शार्क होगा, सा फिश होगा और गैंजेटिक शार्क है और ये रे है, ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट से 10 एलिस्मो ब्रांचेस होते हैं शार्क जातियाँ, उनको लिस्ट आउट करके और जब भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आता है ना, तो उसके हिसाब से जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमारा रिक्वायरमेंट चाहिए, हमारा सलाह चाहिए, जिन मछली का जो भी शार्क का संतति कम हो रहा है उसके बारे में हम उनके साथ डिस्कस करके जिनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखना है उन सबको डिस्कशन करके गवर्नमेंट को रिकमेंड भी करते हैं। सर फिश का कंजम्पशन भी होता है, उस पर मेडिसिन भी बनती है, तो उस पर कोई रिसर्च आपकी स्पेसिफिक है? नहीं सर, हम तो मेडिसिनल के फिश के ऊपर मेडिसिनल के बारे में नहीं कर रहे हैं, मगर ये आप जो बोला वो सही है। तो हम उस चीज़ में जो एडिबल मजल्स हो जाता है ना, मजल्स और सीवीड है, इनके अंदर भी ये मेडिसिनल वैल्यू है जो न्यूट्रासिटिकल्स होता है। तो हमारा वो वैज्ञानिक संस्था में उसका भी एक विंग है, वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ कड़ल में है, ये सब है ना, ये हमारा इंस्टीट्यूट के तरफ से बना हुआ न्यूट्रासिटिकल एक्सट्रैक्ट करके बना हुआ मेडिसिन है। तो ये भी हम कुछ इंटरेस्टेड जो कंपनी हो जाते हैं प्राइवेट कंपनी, उनसे MOU करके हमारे हेड ऑफिस में MOU करके ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं वो कमर्शियलाइज करते हैं। तो वाटर केज फार्मिंग पे आप बहुत ध्यान देते हो, तो उसके ऊपर कुछ मैसेज आपके साइड से होगा? केज फार्मिंग, हाँ, केज फार्मिंग में भी हम ये जो दो तरफ का केजेस हो जाता है, जो हम बोलते हैं एस्चुरी मतलब जब नदी आके समुद्र को मिलता है वो जगहों में पूरा साल्ट वाटर भी नहीं था, पूरा फ्रेश वाटर भी नहीं था, तो बीच में होता है वो उसका नमक का कंटेंट, वो उसमें एस्चुरी में जो हम जो बोलते हैं उसको इवन बैक वाटर भी है ऐसे। तो उस जगह में हम स्क्वायर वाला केजेस वो है ना
वो रेक्टेंगुलर वाला केजेस, ऐसे केजेस डालता है। और जो समुंदर में तो हम सर्कुलर केजेस को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि समुंदर में वेव एक्शन ज़्यादा होता है, विंड हो जाता है, तो उसी के लिए उन सबको विस्टैंड करने के लिए हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल हुआ तो केज कभी भी टूट सकता है। तो इसके लिए सर्कुलर हो जाए तो वो जो भी विंड पासिंग होगा, कोई समुंदर में कुछ हलचल हुआ तो भी ये सर्कुलर केज विस्टैंड कर जाता है। तो अभी 3 मीटर डायमीटर का, 5 मीटर डायमीटर का, इवन 6 मीटर डायमीटर का अगर कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ तो 10 मीटर डायमीटर का भी केज डाल सकता है। और उसके हिसाब से पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम नंबर ऑफ छोटा मछलियाँ उसमें डाल के, तो जब हम पिंजर में डाल जाते हैं तो मछलियाँ बाहर जाके नहीं खा सकता है, उसी के लिए खाना भी हमें देना होता है। तो ये सब है ना, ये आर्टिफिशियल फीड है। ऐसे फीड को भी उनको 8 से 10 महीने तक खिला तो वो मछलियाँ बराबर 1 kg तक आएगा। तो ये दोनों स्पीशीज़ का गोवा में तो बहुत अच्छे मार्केट है, लगभग 400 से 500 तक दाम है 1 kg का। तो 8 से 10 महीने में ऐसे अच्छे कमाई कर सकता है। उसके साथ ये सीवीड होगा या ग्रीन मसल होगा, ये सब है एडिशनल इनकम के लिए। आप देख सकते हैं ये ग्रीन मसल है। जब पिंजर में ऐसे मछली को पाला जाता है तो तब बहुत सारे फीड देते हैं ना। जब इन फीड में जो भी फीड वेस्टेज भी हो जाता है, क्योंकि जो भी जितना हम फीड देते हैं उतना सब नहीं खाता है, जितना खा सकता है उतना खाता है मछलियाँ। तो बहुत सारे वेस्टेज हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, वो वाटर क्वालिटी का कुछ खराब होने का चांसेस रहेगा। समुद्र में ये बहुत कम है, क्योंकि वेव एक्शन रहता है, जो भी वेस्टेज होता है वो लगभग क्लीन होते जाता रहता है। ये ग्रीन मसल्स है ना, ये फीडर है, मतलब ये पानी के अंदर जो न्यूट्रिएंट रहता है ना, उसको खा के ये ग्रो होने वाला है। क्योंकि ऐसे फूड का कुछ वेस्टेज ज़्यादा हुआ तो ऐसा वो पानी में मिक्स हो जाएगा ना, तो उन चीज़ों को ये फिल्टर करके ये भी डेवलप हो जाता है। मतलब हमारा जो एक्सेस फीड अगर डाला हुआ तो भी वो हमें वेस्ट नहीं हो जाता है, बल्कि ये ग्रीन मसल उनको फिल्टर फीडिंग में खा के हमें अच्छा ईल्ड भी दे सकता है। क्योंकि ये पिंजर मछली के साथ साथ ये भी एडिशनल इनकम आ सकता है। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम है डॉक्टर महेश वी। मैं कारवार रीजनल स्टेशन ऑफ CMFRI में वैज्ञानिक हूँ। ये डॉक्टर रघुरामुडो है, ये भी कारवार रीजनल स्टेशन में वैज्ञानिक है। थैंक यू सो मच सर। Look at that.
सर एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल 7th एडिशन जावन आनी तुमचो स्टॉल हांगासर आहा तर तुमकां कितें सांगचे दिसता काय ना बरें आसा पूण अशें वर्सान वर्स 3 दीस दिसता ते आतां आमकां ऑलमोस्ट भरपूर आमी इतलें सामान हाडटा ते ऑलमोस्ट 100 दीस तरी जावपा जाय 100 दीस आसलेल्यार बरें जातालें चड तरी बाबा इतलें सामान आमी घेवन येतात चड जाण येताले क्वॉन्टिटी वाडटाले लोक येवपाक लोकांकूय बरें सुशेगाद पळोवपाक मेळटालें सगळ्यांक हे भाशेन आसलेल्यार बरें जातालें तुमकां आतां कितकी वर्सां जालीं तुमी हांगा स्टॉल घालता आमी आतां ऑलमोस्ट जेन्ना स्टार्ट जाला तेन्ना आमी घालता मडगांव आशिल्ली पयलीं स्टार्टींग थंयच्यान घालत आसा हिंगा अजून पासून घालता आमी ऑलमोस्ट म्हाका जाले आतां 100 वर्सां तरी जालें घालपा लागून स्टार्टींग जाला तेन्ना स्टार्ट घालता आमी तर खुबशे लोक हांगा येतात तांच्या वांगडा तुमचे उलोवपूय जाता तो एक्सपिरियन्स कसो आसता आनी सेल्स कसो आसता तेच्या बद्दल सांगता हे एक्वेरियमान अशें आसा की ते आमी कितलें शिकून तें कमीच आसा आमी सगळें शिकत शिकत आमी दुसऱ्यांकूय सांगता कशें कितें करपा जाय एक्सप्लेनेशन दिवपाक पडटा सगळीं कस्टमराक समजोवपाक पडटा त्या भाशेन सांगपाक पडटा आमकां तुमी फिशींग बिजनसान केन्नाच्यान आहा कितकी वर्सां जालीं तुमकां म्हाका आतां 12 वर्सां जालें आनी फिशींग बिजनसान हांव आसा हांव पयलीं 4 वर्स कोणा कडेन काम केलां मागीर हांव हितून बिजनसान इनवॉल्व जाला ऑलमोस्ट म्हाका 12 इयर्स जालें हांगासर तुमचें क्वॉलिफिकेशन कितें जावना क्वॉलिफिकेशन 12 काम पास तर थँक्यू सो मच थँक्यू Arya, what is it? Here. मागे घेता सर एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल का 7th एडिशन है और आपका यहाँ पे स्टॉल है तो आप क्या कहना चाहोगे Actually, we are from research commission, Central Coastal Agriculture Research Institute. It is from located in Old Goa. So we are working on different sectors like agriculture, animal husbandry, fisheries, horticulture. So our fisheries section set up this stall, and we are promoting mainly two factors. Like one is you can see here the indigenous species of Goa. We are promoting as a ornamental fish species. We are breeding them in captivity and larval rearing also. Second thing, what you see here, it is Asian sea bass culture in freshwater ecosystem. Generally, Asian sea bass is a marine species, but we are culturing in freshwater with live feeding system. We are using different forage species to feed up for Asian sea bass, which is a sustainable fish practice. Apart from that, we are documenting several marine species which are from Grande Island and different coral reach habitat from Goa. So conservation work also we are doing. Thank you. Sir, any message from your side for the fishing who are willing to do business in future? Mainly Goa need to promote aquaculture and several sections are going on and we are also through our institute promoting the farmers like freshwater fish culture, biofloc, RAS, cage culture, even IFS, integrated fish farming, which are naturally sustainable. So students to get involved in this business, fishing business, any workshop you conduct for them? Yeah, we are regularly conducting some training programs and many farmers are visiting our institute to take benefit of training programs. So our clinics and our institutes. So your name and designation? My name is Trivesh Mayakar. I am working as scientist in Central Coastal Agriculture Research Institute. Thank you so much. Thank you. freshwater fish.
So this is the 7th edition of Aqua Mega Fish Festival. Your stall is here. So what do you like to say? Yeah, we are very excited actually. We have had a lot of people who have come and asked us very good questions, and we are happy to share. We are this is one of the models that is here that Government of India has taken an initiative to build artificial reef in all of Indian coast, and yeah, here is a model to that. So any message from your side for the students who are willing to pursue studies? Yes, we are one of the sectors which have been new upcoming students can have very good opportunity because we even offer internships and everything. We are from Fishery Survey of India. We have very good vessels wherein you can see you can always go for oceanic expedition and explore. We are also working on some projects related to marine mammals wherein it's very exciting to see marine mammals like whale shark. Killer whale we have recently spotted in Goa coast only. So these are some of the great opportunities that students can go through. So we will willingly armly welcome them. Do you organize workshop for the students? Yeah, we do. Yes. So your name and designation? Yeah, I'm Venkatesh Saroj from Fishery Survey of India. I work as a young professional. Thank you so much.